Good morning to all. For today, we are going to cover your full wave rectifier. Rectifier is a circuit which converts AC into DC, and full wave rectifier is a device which converts full of the input into output. मतलब full of the AC input into DC. A full wave rectifier is a circuit which converts an AC voltage into a pulsating DC voltage using both half wave cycles of an applied AC voltage. इसमें क्या होता है आपका बोथ हाफ वेव साइकिल्स आपके लगते हैं, एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, जिसके कारण आपको क्या मिलती है, कंप्लीट आउटपुट ऑब्टेन होती है at the load. ठीक है. It uses two diodes of which one conducts during one half cycle while the other conducts during other half cycle of the applied AC voltage. इसके अंदर हम दो डायोड यूज करते हैं बेसिकली कंडक्शन कराने के लिए, जो कि एक जो है पॉजिटिव एक कंडक्ट करता है जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, दूसरा कंडक्ट करता है जब आपका नेगेटिव हाफ साइकिल हो. ठीक है. लेकिन जरूरी नहीं है फुल वेव रेक्टिफायर में सिर्फ दो ही डायोड यूज हो. Depend on which type of full wave rectifier you using. ठीक है. Because there are two types of full wave rectifiers. One is called as center tap full wave rectifier, one is called bridge full wave rectifier. In case of center tap, we are using only two diodes, but in case of bridge rectifier we use 4 diodes. Okay, दोनों की आपको मैं दिखा लेती हूँ डायग्राम्स भी. First we start with your center tap. In center tap full wave rectifier, two diodes are used. ठीक है. They are connected to the center tap secondary winding of the transformer. As we know that rectifier is connected to the transformer, there are two windings in the transformer. One is primary and one is secondary. Always a diode is connected to the secondary winding. It divides the total secondary winding into two equal parts. It usually considered as a ground point or the zero voltage reference point. Okay, so now this is the circuit diagram of your center tap full wave rectifier. So what is happening here? This is your transformer. Okay, this is your primary winding and this is your secondary winding. This secondary winding has 2 points A and B. A is connected to the one diode D1 and B is connected to the other diode D2. Okay, so the load will be calculated over in the mid of the line of the transformer. ठीक है. तो V out will be calculated over here. दिस इज योर इनपुट सिग्नल फुल वेव, मतलब जो भी आपके इनपुट और एसी इनपुट आ रहा है, और जो आपको आउटपुट में रिस्पांस मिलेगा कुछ इस तरह से आपको रिस्पांस मिलेगा. ये हम और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे. कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज रेक्टिफायर. उसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है. एक ब्रिज स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करता है. इसके अंदर हम 4 डायोड्स यूज करते हैं. ठीक है. एक ऑपरेट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक ऑपरेट करता है जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा हो, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, लोड के अक्रॉस आपको वोल्टेज मिल जाती है. ठीक है. ये आपका कंस्ट्रक्शन था ब्रिज रेक्टिफायर का. नाउ कमिंग टू द वर्किंग ऑफ द जर्नलाइज, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की जर्नलाइज वर्किंग के बारे में बात करेंगे तो हाउ विल इट ऑपरेट्स. सी व्हाट हैपन इन दिस. द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पावर डायोड्स connected to a single load resistance. As we see in the diagram, there are 2 diodes in a generalized full wave rectifier. We are talking here about the center tap. Okay, वहाँ पे 2 diodes आपके लगे होते हैं. When point A of a transformer is positive with respect to the point A, diode D1 conducts in forward direction. So what is happening here? We are considering this point. ठीक है. अब आपकी ये वाली वेव फॉर्म आ रही है. अब जब आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है ये वाला, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग से यहाँ से क्या निकल रही है, पॉजिटिव वेव, जिसके कारण क्या हो रहा है, D1 आपका क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बाइस, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू द पॉजिटिव. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, आपका D1 ऑपरेट करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपके लोड पे आपको आउटपुट मिल जाएगी. ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा और करंट कंडक्शन टेक प्लेस कर जाएगी. ठीक है. तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. When point B is positive in the negative half cycle with respect to the C point, okay, the diode D2 conducts in the forward direction and the current start flowing through the resistor R in the same direction for both half cycle of the wave. So now in second step what happened, now when this starts coming, ये तो पहले आपके फर्स्ट हाफ साइकिल हो गया. इस फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका D1 ऑपरेट करेगा. नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका क्या होगा, यहाँ से ये चीज D2 ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा, ना कि D1. D1 will stop. D2 start operating and act as closed switch
एंड स्टार्ट कंडक्टिंग, एंड लोड के अक्रॉस आपको क्या मिल जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन किस डायरेक्शन मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, क्योंकि इस टाइम ये जो है फॉरवर्ड बाइस आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसलिए आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऑब्टेन होगा इस केस में भी। The diode D2 conducts in forward direction and the current flowing through the resistor R is the same direction for the both half cycle of the wave. The output voltage across the resistor is a phasor sum of two waveforms. It is a phasor sum. जो भी आपको R के across voltage मिलेगी load resistance के, वो दोनों का phasor sum होगा, ठीक है। Vmax is the maximum peak voltage in one half cycle of the secondary winding, and Vrms is the RMS value. When we talk about Vmax वो आपका मैक्सिमम पीक वैल्यू वोल्टेज होगा और उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के क्रॉस, और जो Vrms होगा वो आपका मैक्सिमम RMS वैल्यू होगा। Now coming to the waveform, this is your input waveform. इस तरह से आपकी इनपुट आ रही थी। जब आपकी पॉजिटिव इनपुट फर्स्ट वाली आ रही थी और आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग के टॉप ए वाली साइड पे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा था, उसके कारण आपका D1 जो था, डायोड D1, वो आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा था और एक्ट कर रहा था क्लोज सर्किट की तरह, तो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा था यहाँ पे, ठीक है। जब आपका दूसरा नेगेटिव साइकिल आया ये वाला, उस टाइम पे आपका जो D2 है ये आपका फॉरवर्ड बायस हो गया और आपको रिस्पॉन्स दिया इसने इस तरह से, एंड सो ऑन आपको रिस्पॉन्स मिलता गया। और आपने इसका क्या किया, लोड के अक्रॉस, रेजिस्टर आर के अक्रॉस इनका फेजर सम करा, तो आपको जर्नलाइज वेवफॉर्म क्या मिल गई, इस तरह से। सो आपको ये जर्नलाइज आउटपुट मिल जाएगी किसकी, फुल वेव रेक्टिफायर की। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर बेसिकली इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट हाफ इनटू योर एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी। बट ये डीसी तो किसी एंगल से नहीं है। डीसी बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको कैपेसिटर सर्किट से पास कराना पड़ेगा। कैपेसिटर सर्किट से पास करा के आपको क्या मिल जाएगी, पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, full wave rectifier. Talking about the advantages of full wave rectifier, ripple frequency is 2 times the input frequency. इसकी ripple frequency क्या होती है, input frequency से 2 टाइम होती है। The output and efficiency of the center tap full wave rectifier are high because AC supply delivers power supply both the halves. इसमें आपकी जो efficiency है generalize obviously better होगी your half wave rectifier से, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा input आपका waste होता था, इसमें नहीं होगा। For the same secondary voltage bridge rectifier has double output. इसका क्या होता है, in case of bridge rectifier आपको क्या मिलेगा, double output भी आपको obtain होता है। I hope आपको टॉपिक समझ आया हो, ठीक है।